যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 238 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 6.238 onwards। 238 নম্বর শ্লোক। এই তো সংক্ষেপে আমি কইলু উপদেশ, এই তো সংক্ষেপে আমি কইলু উপদেশ, স্বরূপের ঠাই ইহার পাইবে বিশেষ। স্বরূপে ঠাই ইহা পাইবে বিশেষ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुषमा शॉ माता जी से। सुषमा शॉ माता जी हैं? हाँ प्रभु जी, हरे माता जी कृष्ण। थोड़ा गाइड कर लीजिएगा सीक्वेंस प्लीज। ठीक ठीक। সংক্ষেপে মহাপ্রভু বললেন রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে, সংক্ষেপে আমি তোমাকে এই উপদেশ দিলাম, স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাছে তুমি সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে निर्देश पावे। ओके, मैं डिटेल में नहीं दिया, डिटेल किनसे मिलेगा? स्वरूप दामोदर से। तृणादपि सुनीचेन तरुरिव सहिष्णुना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तृणादपि सुनीचेन तरुरिव सहिष्णुना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। যিনি নিজেকে সকলের পদদলিত তৃণের থেকেও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, যিনি বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু, যিনি নিজেকে মান শূন্য এবং অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের অধিকারী। হরি बोल। I don't know आगे आएगा या नहीं। महाप्रभु बताए थे कि ये श्लोक को गला में कंठ धारण करने के लिए, माने कंठे धारण করে নিতে এই শ্লোকটি। ये दो लाइन और अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, ये 4 लाइन, सॉरी ये 2 लाइन, ये 2 लाइन महाप्रभु ने बोला था कंठ में धारण करने के लिए। सो उसीलिए अगर आप लोग राधा कुंड में जाएंगे तो राधा कुंड में देखिएगा जो दुकानें हैं ना जहाँ कंठी माला बेचता है, देखेंगे साइड में बहुत है ना कंठी माला बेचने वाला दुकान, बनाते भी है हम लोग। तो उन लोग ये कंठी माला भी बनाते हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरुरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, पूरा पूरा लिखा हुआ है। ये गला में बहुत भक्त लोग धारण भी करते हैं। आप लोग ने देखा है कभी? कोई नहीं देखा है। राधे राधे देखे होंगे, राधे राधे ये सब रहता है, वो उसमें ये भी रहता है। ओके, यस पंकज चित्तवजीश को यस तो देखा हुआ है। देखा ना। এত শুনি রঘুনাথ বন্দিলা চরণ, এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ, মহাপ্রভু কইলা তারে কৃপা আলিঙ্গন। महाप्रभु कैला तारी कृपा लिंगन। ये सुनीत राधिका माता जी, क्या आपने खरीदा भाई क्या? प्रभु जी हो गया बोलो। ওকে, মহাপ্রভুর কাছে এই নির্দেশ পেয়ে রঘুনাথ দাস তার শ্রীপাদ পদ্ম বন্দনা করলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা করে তাকে আলিঙ্গন করলেন। ওকে, এত শুনি রঘুনাথ বন্দিলাচরণ মহাপ্রভু কইলা তারে কৃপা আলিঙ্গন। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी आई वांट टू आस्क यू, ये जो है त्रिनाद, বাংলায়। हाँ ओके जी, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে त्रिनादपि सुनीचेन तरोरविशेषणा, दिस इज शिक्षाष्टकम बाय चैतन्य, ये शिक्षाष्टकम আছে এটা চৈতন্য মহাপ্রভু। তো এটা কি আমার জন্যই আছে কি? এই যে আছে যে লাইন 4 লাইন, এটা আমার জন্যই আছে, সবাই ভক্তের জন্য ও কি এটা লিবারেটেড ডিভোটিজ এর জন্য আছে? For everybody, I'm sure. I mean, this is for everybody, not only for, I mean, this is for every, not only for liberated, but for everybody. Trinadapi Sunichina Sahish, I mean, Tarudapi Sahishnu. Why you are asking this? बिकॉज आई एम आस्किंग, मैं ये पूछ रही क्योंकि अभी फैमिली में है, तो फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड है, बच्चा है या सर्वेंट्स है घर में, तो उनके साथ ये चीज कैसे लागू हो सकता है प्रभु जी? এটা কিরকম হবে, মানে প্র্যাকটিক্যালি এটা কিরকম অ্যাপ্লিকেশন হবে? I mean,
when we see everybody on the platform of soul, আমরা যখন সবাইকে ভগবত স্তরে দেখি যে সবার মধ্যে ভগবান নিবাস করছে, মানে লর্ড ইজ রিসাইডিং ইনসাইড এভরিবডি, তখন আমরা then we are able to হ্যাঁ, কিন্তু যখন আমার কিছু ঝগড়া হয়, কিছু আমি অ্যাংরি হয়ে যাই, কিছু কিছু টপিক নিয়ে হাজবেন্ডের উপরে, আর তখন এইটা তো হবে না, লোয়ার দেন আ গ্রাস, দ্যাট টাইম তো আই কান্ট, বিকজ আই এম ইন আ গ্রাস্তা লাইফ। Suppose we cannot that doesn't mean that we say that this is not universally applicable. The problem lies with us. আমার the problem is যে মানে ওই সময় the shortcomings I have, I cannot blame on this principle. যেমন ফর এক্সাম্পল ওই যে একটা শ্লোক আসে উপদেশ অমৃতমে, যে যারা মানে যখন আমরা ভবরোগে পড়ে যাই তখন হরিনামও তেতো লাগে, তখন শিল প্রভুপাদ উদাহরণ দেয় আখের রসের, না? যাদের জন্ডিস হয়েছে তাদের তো মানে আখের রসে তেতো লাগবে। এর মানে না, শিল প্রভুপাদ লেগে এর মানে না যে আখের রস তেতো। সিমিলারলি this is the principle we should follow all the time. আর মহাপ্রভু বলেছেন তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের অধিকারী। অধিকারী, না, what is it like? পদেশা দায়াভাগ। দায়াভাগ মানে he deserves this, it's his birthright actually, so but এটা করতে করতে হরিনাম করতে করতে this will come, আমাদের মধ্যে এই নম্রতা চলে আসবে। আসলে we take our own people for granted. All the misbehaviors come towards them only, usually, at least in my case I'm telling you all. By we are at its best, especially when we are amongst devotees. We try to behave very nicely in front of outsiders, we try to behave very humbly, কিন্তু যখন নিজেদের লোকের সামনে আসে তখন কিন্তু আসল রূপ বেরিয়ে যায় আমার। হ্যাঁ, তো ওই জন্য এটাই পারফেকশন হবে আমাদের সাধনার, যখন আমরা এই সব গুণগুলি আমাদের নিজের লোকেদের সঙ্গে প্রদর্শন করতে পারবো। I think that will be the challenge. प्रभु जी, मैं थोड़ा समझाना हिंदी में बोलूं प्रभु? हाँ, बोलिए ना। जैसे कि अभी अपने हस्बैंड के साथ है झगड़ा लड़ाई, कुछ ना कुछ तो मिस अंडरस्टैंडिंग या मतलब थॉट्स, व्यूज, ओपिनियंस कुछ तो अलग होते हैं प्रभु, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चे के साथ। तो दैट टाइम हाउ कैन यू टॉलरेट, आई मीन आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि यू आर थिंकिंग अबाउट इट एवरी टाइम, और जब वो झगड़ा आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और तो फिर मतलब कि उस समय हमें क्या करना चाहिए? टॉलरेंट कैसे हो सकते प्रभु? उस समय तो बाहर आएगा ही ना, अगर गुस्सा होगा या कुछ गलत बात होगी, हम दुनिया के साथ ना लड़े, बट अपने बेटर हाफ के साथ, या कोई स्टाफ घर में काम नहीं कर रहे हैं, उस समय अगर वो कुछ हमें बोले तो हम टॉलरेट कैसे करें? बिकॉज हमको तो काम करवाना है, हम ना बोलेंगे तो काम नहीं होगा प्रभु। So there's a difference between काम करवाना स्टाफ से और उसमें थोड़ा गुस्सा प्रदर्शन करना, that is allowed. अच्छा, That is allowed, of course. उसका कुछ डिग्रीज है, और जो अपने बच्चों को डांटते हैं that is allowed by parents, administrators. Parents are supposed to be administrators of their children. That's allowed. अच्छा, ओके। एंड विद द हस्बैंड अगर आर्ग्यूमेंट होता है या कुछ होता है तो उससे कैसे मतलब ये चीज हस्बैंड, बच्चे और जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके लिए ये ट्रू नहीं है क्या, ये वाला लाइन? हु इज मोर टॉलरेंट देन अ ट्री? बच्चे लोग को तिरस्कार करना और हस्बैंड को तिरस्कार करना में अंतर है। अच्छा, ओके ओके ओके। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे इस प्रसंग में? Somebody wants to share? भागवतम में आया था ना प्रभु जी की, यदि हस्बैंड लोग जैसे कि दिन भर से बाहर रहते हैं, फिर आते हैं, तो हम लोग गुस्सा कभी कभी नहीं करना चाहिए, मतलब यदि वो लोग थोड़ा सा गुस्से भी तो हम लोग को शांत होना चाहिए। यहाँ पर बहुत गलत उदाहरण आया है भागवतम में प्रभु। हालांकि जनरल लाइफ में ऐसा होना थोड़ा दुष्कर होता है, मान लेते हैं तो हर घर में होता है, लेकिन
ये जो क्या बोलते हैं ना वैदिक विधान में कि इसके अनुसार पत्नी को हमेशा सबमिसिव रहना चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि अपने एंगर को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि एंगर जहाँ रहता है वो वहाँ ये इनके पीछे कुछ लिप्सा यानी कि चाहत छिपी होती है, तभी एंगर होता है। तो वो एंगर और वो चाहत को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे, हमारा परिवर्तन कहाँ होगा तब। प्रभु जी, अगर वो एंगर किसी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए है, तो क्या वो एंगर को सप्रेस करना चाहिए, टॉलरेंट रहना चाहिए, कि उसको करवाना चाहिए? मतलब अगर वो एंगर से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए। नेवर इट शुड बी डन। एंगर से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आई गॉट योर पॉइंट। कभी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, घर का मुर्गी डाल बराबर होता है। कोई अगर किसी का स्पाउस का प्रगति आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुस्सा करता है तो वो तो और नेगेटिव हो जाएगा। अपने वाले को प्रीचिंग कभी डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। अपने वाले को प्रीचिंग तीसरे वाले के थ्रू से करना चाहिए, कोई बाहर का व्यक्ति से खुद का अपलिफ्टमेंट के लिए प्रभु जी, अगर खुद का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए हम एंगर हो रहे हैं कि मतलब गलत बात बोला जा रहा है, हमको खुद का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना है, उसके लिए हम अगर फाइट कर रहे हैं, उससे सोल्यूशन नहीं होगा। आप लोग कितना लोग मानते हैं कि जो किया गुस्सा उसी का एक्चुअली लॉस होता है। जो बहुत झगड़ा चित्का चित्ती करते हैं, लास्ट में उसी का लॉस होता है ना? दोनों आर्ग्यूमेंट में जो जितना चित्कार करता है, जो झमेला करता है, वही सबसे नुकसान में रहता है। और बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप से अपना काम कर लेता है। she or he knows how to get it done. और gracefully करना चाहिए। Whatever, like, of course I am saying my shortcomings are also at its heights, but I mean, सोचिए how we want to be remembered as. One day we'll be leaving our body. How we want to be remembered as. And somebody अगर कोई हमारे बारे में सोचे जब हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, क्या हम लोग वी वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज वो झगड़ने वाला खिटखिट वाले लेडी, वो या प्रभु जी उसके बारे में, या व्हाट अ वंडरफुल डिवोटी। ऐसे भी हम लोग के जीवन में कितना, हम लोग जो इस्कॉन में आए हैं, कितना कुछ भक्त है ना जिनके बारे में सुनने से ही एक ग्रेशियसनेस आता है। ओह माय गुडनेस, व्हाट अ वंडरफुल भक्त। वो चीज पहले वही स्ट्राइक करते हैं। ऐसा है ना बहुत भक्त जिनके बारे में कभी भी हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं, तो यही पहले बात आता है, ओह व्हाट अ वंडरफुल डिवोटी। डोंट वी वांट टू बी वन ऑफ देम? सो उसके लिए ये त्रिनादपि सुनिचिना तरुरेव सहिष्णु हम लोग को इन्वाइट करना है। और ये साध्य है, ये साधन है। महाप्रभु बता रहे ये करने से क्या होगा। जो ये करता है त्रिनादपि सुनिचिना तरुरेव सहिष्णु ना, महाप्रभु लिखता है तिनी सर्वक्षण भगवान दिव्य नाम कीर्तन अधिकारी, लिखते हैं ना। और इसका वाइस वर्सा भी, ये करते करते भी आएगा। जो हरिनाम करते करते त्रिनादपि सुनिचिना तरुरेव सहिष्णु आएगा, और त्रिनादपि सुनिचिना तरुरेव सहिष्णु आने से हरिनाम का अधिकारी भी होगा। सो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल। Yes, Prabhu ji, हमको I got the answer. We should do it, but with gracefully, not with anger. कुछ फायदा नहीं होता एंगर से, वो पेट्रोल डालना जैसा होता है। पर प्रभु हमने ये भी तो सुना था कि हनुमान जी ने गुस्सा किया था। नहीं करने दे रहा है, जब कर रहा है टीवी चालू कर दे रहा है, या बोल रहा है कि चलो हमारे साथ नॉनवेज खाओ, प्याज लहसुन खाओ, कोई अगर ऐसा कर रहा है, हम नहीं बोल रहे कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और अपना स्टैंडर्ड नीचे लाने के लिए नहीं, लेकिन ग्रेसफुली बुद्धि इंटेलिजेंस यूज करके सांप भी मारना है और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ करना है। वेरी नाइस। ओके, बट लेकिन हनुमान जी ने, हम ये भी तो एग्जांपल देखते हैं कि अगर कभी हमें गुस्सा आता है स्पिरिचुअल के लिए, तो हम ये भी तो देखते हैं ना एग्जांपल ऑफ हनुमान जी, उन्होंने भी तो, उनका गुस्सा भी तो स्पिरिचुअली हुआ ना, तो वो रस दैट इज वन रस, एंड वो भगवान के लिए गुस्सा कर रहे थे। हनुमान जी किनके ऊपर गुस्सा प्रदर्शन किया? राक्षसों के ऊपर। यहाँ पति तो गुरुदेव है, पति तो गुरुदेव है। मैं व्हेन आई वेंट विद माय वाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, वी मेट अ स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। तो माय वाइफ टोल्ड हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। तो द फर्स्ट थिंग दैट गुरुदेव हम लोग को बताया, हम उनको बताया एक्चुअली, दैट मैं बाद में गुरुदेव, सबसे पहले तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा गुरुदेव। हस्बैंड इज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर फॉर अ वाइफ। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने दिया।
सो उनके साथ हम लोग हनुमान जिनका लंका जला दिया उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बट प्रभु, इफ द हस्बैंड इज मटेरियलिस्ट पर्सन, तो वो कैसे गुरुदेव बनेंगे? Even Bhavatarini Devi's husband was a materialist and he used to eat non-veg. Bhavatarini Devi, Srila Prabhupada लिखते हैं purport में, she is a first class devotee. Now Srila Prabhupada पहली बार किसी को लिखा first class devotee अपने दीदी के बारे में, बहन के बारे में, सॉरी, भवतारिणी देवी के बारे में. लेकिन उनका हस्बैंड नॉनवेज खाते थे और भवतारिणी देवी बनाकर देती थी. कैन यू इमेजिन एक वैष्णवी उस स्टैंडर्ड का, उनको कितना दिक्कत हुआ होगा अपने हस्बैंड के लिए नॉनवेज बनाने के लिए? But she had to do. She was forced to do, and she did that. But later, her husband only told her one day, "Please, I am feeling very bad. You are cooking for me. You are such a nice, wonderful person. Don't cook for me non-veg." हरि बोल. यही उनका जीत है. भक्ति से जब ये हृदय को परिवर्तन किया उन्होंने. वहाँ ड्यूटी और अपना रिस्पेक्ट तो किसी भी स्तर में रहना चाहिए प्रभु. वैसे स्पिरिचुअल लाइन जो है अलग बात है. That's why अलग है. Srila Prabhupada used to say, राज्य नष्ट है राजार दोषे, गृह नष्ट है गृहिणी दोषे. Srila Prabhupada इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बनाते हैं. या संगिनी श्याम प्रिया माता जी. यस प्रभु, जैसे अशोक मिश्रा प्रभु बोले ना कि मतलब स्त्रियों का, मतलब पत्नी का कुछ इच्छा रहता है, इच्छा के वजह से वो क्रोध करती है. तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे मतलब कि हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हुआ, तो जैसे इच्छा वाले क्या होता है, उसकी कुछ जरूरत की इच्छाएं रहती है, जैसे किचन से रिलेटेड हुआ, कुछ से हुआ. हस्बैंड लोग थोड़ा लापरवाह टाइप के होते हैं, मतलब उन लोग सीरियस नहीं लेता पत्नी लोग के बातों को. तो कितना उत्तीर्णा दपी बनने की, सामान नहीं आएगा, कुछ लिस्ट भी बना के दो तो भी सभी हस्बैंड का बात करें प्रभु, हर हस्बैंड लापरवाह होता है इस मामले में. आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. यू नो व्हाट माता जी, तो चिल्ला के अगर काम हो जाए, चिल्ला के अगर काम हो जाए, अपना कॉन्शियसनेस भी वो स्टैंडर्ड लो हो जाएगा. अच्छा से बोलने से बार बार बोलते समझ आ जाएगा कि लापरवाही है. से बोलने समझ में आता, थोड़ा सा जब नहीं होता तो डांट के बोलने से अपना तो लॉस है. वही तो मैं बता रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होगा. बाद में आप सोच रहे काम हो जाएगा, लेकिन छोटा काम हो जाएगा, सामान आ जाएगा, अपना चेतना डाउन हो जाएगा. बड़ा चीज खो देंगे, छोटा चीज पा लेंगे. नहीं प्रभु, वहाँ पे अगर व्यक्तिगत रूप से हो जाता है ऐसा, एक्चुअली डोंट यू सी दैट हम लोग अपने कितना नुकसान कर रहे हैं? अगर छोटा छोटा सामान भूल जा रहा है, उसके लिए बोलने के लिए चित्कार करके या थोड़ा डांट करके, जिनको डांटा नहीं चाहिए उनको डांटने से काम हो जा रहा है. इसमें तो एक गुस्सा भाव आ ही जाता है थोड़ा सा, कि मन से नहीं होता है, ऊपर हो जाता है कि हाँ टाइट बोलना. इन द लॉन्ग रन इट इज आवर ओन कॉन्शियसनेस. जिस चेतना को शुद्धिकरण करने के लिए इतना जप कर रहा हूँ, सुबह उठकर इतना कुछ ठीक करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, उसी को छोटा छोटा चीज के लिए गवा दूंगा, आई थिंक ये मूर्खता होगा. 5-4 बजे भोर में जगने से माता जी फायदा कहाँ हो रहा है? होना चाहिए ना. अभी ये सिर्फ 4 बजे कहाँ प्रभु जी, 2 बजे जगते हैं. 4 बजे इट इज आल्सो सिर्फ पत्नी को पति के लिए ये नहीं है, एंड वाइस वर्सा 100%. सेम गोस फॉर प्रभु जी आल्सो. अगर ये सब करने के बाद, इतना तपस्या, इतना कुछ अच्छा करने के बाद, अगर इफ वी आल्सो मिसबिहेव विद आवर स्पाउस एंड विद आवर चिल्ड्रन, तो वही एक ही चीज होगा कि छोटा छोटा चीजों के लिए हम लोग क्या बड़ा चीज गवा दे रहे हैं. जितना क्या स्तर पे आ जाएगा अगर छोटा छोटा. एक्चुअली क्या होगा ना, बाद में एक अभ्यास हो जाएगा ये चीज करने का, और एक समय आएगा व्हेन वी विल रिलिश टू चैस्टाइज समबडी. एक्चुअली चैस्टाइजमेंट में भी एक रिलिशमेंट आता है. रिलिशमेंट समझते हैं आप? ये बॉसीनेस दिखाने में भी एक तृप्ति आता है, आनंद आता है, किसी के ऊपर बॉस दिखाने के. ये अभ्यास हो जाएगा, इसमें हम लोग आनंद पाएंगे. लेकिन बच्चे के लिए तो हम लोग को ये रूप में नहीं आना चाहिए. अलग है, बच्चे का बाप अलग है. बच्चे का कैटेगरी मत लाइए. दोनों बच्चा और हस्बैंड को कंपेयर मत कीजिए. रावण लंका जला दिया और अपने हस्बैंड को उसमें कंपेयर नहीं होता है. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज. यस, खुशबू. अब वो फिर वो घर में करते करते ना बाहर में भी होने लग जाता है. दादागिरी वाला एटीट्यूड हो जाएगा. बहुत लोग बहुत बॉसी है. बातचीत करने का ढंग वो आदत ही हो गया सबको. पट करके वैसे करके टोक देना, डांट देना. अभी सबसे बड़ा ईगो यही है कि मैंने जो कहा उसने नहीं माना, वो किया नहीं. I mean, it goes for husband also. It goes for everybody. Yeah. तो हमने देखा है क्लास में भी कि मतलब हम लोग जहाँ भक्ति विषय जाते हैं, वहाँ एक माता जी और प्रभु जी आते थे. तो माता जी
बहुत मतलब अपने प्रभु का डिसरिस्पेक्ट करती थी, तो वही घर में करते करते फिर वो चीज बाहर में भी होने लग जाता है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। यस खुशबू माता जी, हरे कृष्ण। जैसा कि बताया जाता है हर समय कि स्त्री मन बुद्धि होती है, स्त्री का जैसे कि हर समय बताया जा रहा है स्त्री के कारण ही ये सब होता है। तो कहीं कहीं स्त्री घर बनाती है प्रभु जी, और कभी कभी ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड लोग कुछ गलती करते हैं तो उसको सुधार लाने के लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो वो ये सिचुएशन मना वाकई नहीं कर रहा हूँ बोलने के लिए, मैसेज शुड बी कन्वेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर कुछ शिक्षा देना है वो तो देना ही चाहिए, कुछ अगर गलत हो रहा है उसका तो प्रतिवाद करना ही चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह इसमें है क्या तरीका से आप पास ऑन कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसीडियर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन, वो है, दैट इज वेरी व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बता रहा हूँ कि गलती अगर किसी का, एंड वाइस वर्सा आल्सो द हस्बैंड, अगर बिकॉज हस्बैंड का केस में तो ज्यादा होना चाहिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल, सेकंड ऑफ ऑल वाइफ यूजुअली उम्र से कम होता है, छोटी होती है, तो वो वो दादागिरी टाइप वो, बट माय पॉइंट इज इससे एक्चुअली दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर डिवोटीज। हम लोग छोटा छोटा चीज के लिए बड़ा बड़ा चीज गवा दे रहे हैं, इससे हम लोग का आदत खराब हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हिंट। हाँ प्रभु जी समझ में आ गया, मतलब कि इफ यू वांट टू डू आल्सो डू रिवोल्ट, प्रतिवाद करना चाहिए, उसके अगेंस्ट खड़े होके बोलना चाहिए, बट एक भक्त जैसे बोला है ना भगवान ने की गीता में, और श्रील प्रभुपाद बोलते कि भक्त बड़ा चतुर, तो मतलब हमको अपना काम निकालना आना चाहिए इन अ वेरी ग्रेसफुल, जैसे आपने बताया, इन अ वेरी ग्रेसफुल एंड इन अ वेरी सबमिसिव और वेरी साइलेंट वे। ऐसे प्रतिवाद गुस्सा करके तो हम अपना दिन भी खराब करते हैं और सामने वाले का दिन भी खराब करते हैं, और हमारा और कॉन्शियसनेस भी हमारा गिरता है, जैसे आपने बताया धीरे धीरे, एंड देन हमारा वो नेचर बन जाता है धीरे धीरे। ये बोलना बहुत इजी है। मैं अपना छोटा तजुर्बा से मैं कुछ भक्त लोग को देखा हूँ, राधा पास प्रभु को देखा हूँ, कट्टर एकदम स्ट्रिक्ट। हाँ वो देखिए, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, खुद भी बताते थे कि हमको ये ना इतना मीठा छुरी करना नहीं आता है, इसीलिए मैं रघुनंदन प्रभु को बोला भेजता हूँ। अगर किसी को कुछ बोलना है, सोचिए कोई सीनियर व्यक्ति को कुछ बोलना है, गलत कर रहा है कुछ, उसके लिए रघुनंदन प्रभु को भेजता हूँ। रघुनंदन प्रभु का स्टाइल अलग है, वो जाके पहले आपका दंडवत प्रणाम कर देगा तुरंत। अगर कोई साधु हो, वो दंडवत प्रणाम कर रहा है, सैफरन ब्रह्मचारी, तो एक गृहस्थ क्या होगा, अरे बाप रे बाप, क्या प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप, फिर बोल देगा आप जो ये किया, ये बोला ना, ये मत करिए, ऐसा ठीक नहीं है। दिस इज हिज टेक्निक। रघुनंदन वो जो कर देगा बने और फिर बहुत मजाकी है। आई डोंट नो वेदर यू ऑल नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। अब पानी yes, रघुनंदन प्रभु बहुत उम्र हो गया, इज अराउंड 60 इयर्स ओल्ड, पर इतना जॉली है, इतना मजाकी है, क्योंकि मजाक करते करते बहुत चीज बोल देगा आपको। बहुत एक्टिव है प्रभु, बहुत एक्टिव। माता जी लोग पानीहाटी धाम में आते थे, वो बाद में they used to wear western clothes and come to the temple for aartis, even for Sandhya, even for Mangal Aarti they started wearing western clothes and coming to the temple, so they had to be told. Now माता जी को बोलना, फिर ऐसा भी बोलना भी पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि मत आया, फिर ऐसा कुछ सुन लेगा तो अपने उत्साह से आ रहा है, मंगल आरती में आना बड़ी बात है, पानीहाटी में 4:30 बजे, और आ रहा है, लेकिन सब ठीक है, लेकिन वेस्टर्न क्लोथ्स में आ रहा है, अच्छा नहीं है ना, क्योंकि उसके बाद वो वेस्टर्न क्लोथ्स बैठ के जब कर रहा है, ब्रह्मचारी लोग भी है, तो ब्रह्मचारी लोग को भी तो देखना है, हाँ, तो सब कुछ तो संभालना है एक साथ। तो इतना सुंदर से रघुनंदन को वो टैकल कर देता है, ये सब प्रॉब्लम, ये सब बहुत सब नहीं कर पाएगा, कोई तो डांट देगा, आएगा नहीं, और लेकिन कितना सुंदर से माँ ये একটা तुम्हें रिक्वेस्ट करबो, ऐसे करके बोलेगा तो कोई ना नहीं बोल पाएगा, और फिर बोलने के बाद हाथ में महाप्रसाद थमा देगा। वो मंगल आरती में जो बहुत स्क्वायर संदेश होता है, बहुत टेस्टी, वो छोटा दोना दे देगा। ऐसे करके बहुत टैक्टिक्स है टू डील विद दिस। जो सुपर इंटेलिजेंट डिवोटी होता है उसको आता है ये सब। प्रभु जी गंगा सागर मेला में गए थे, बहुत कितना अच्छा था, टैकल की 3 दिन 4 दिन। हाँ, तो पॉइंट यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि ये जो चीज हम लोग प्रैक्टिकली एवरीडे वी आर फेसिंग इन आवर फैमिली, ये मीठा छुरी ये सब सीखना चाहिए। बाहर का लोग बोलेगा यू आर वेरी डिप्लोमेटिक नेचर,
आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आप बहुत कुटिल है। अरे कुटिल नहीं होने से नहीं चलता है, यू नो, कुटिल नहीं। आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे तो लोगों मुफट हूं। एक्चुअली मुफट होना क्या बुद्धिमान का काम है? खुद से पूछिए, आपका मुफट के वजह से कितना को चोट लगा। कोई के बोलते ना मैं मुंह पर बोल देता हूँ और बहुत गर्व करता है इस चीज पे, नहीं तो मुंह पर ही बोल देता हूँ कुछ गलत देखता हूँ तो। अरे हाँ प्रभु। हाँ, बोलना तो जरूरी है, लेकिन आपका मुफट के नेचर के लिए somebody can get hurt and not come to Krishna consciousness। विश्वास कीजिए कितना लोग इस्कॉन छोड़ के चले गए हैं, कोई एक भक्त के दुराचार के लिए, एक भक्त के खराब व्यवहार के लिए कितना भक्त चला गया है इस्कॉन से, इस्कॉन छोड़कर। तब ना इंस्टीट्यूशन और कभी जाएंगे नहीं मंदिर। ऐसा कितना लोगों का केस हुआ है, मैंने खुद हमने देखा है। सो मेनी पीपल, कोई भक्त ने खराब व्यवहार किया और कभी नहीं आएंगे क्लास में। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी सुपर इंटेलिजेंट। वो सुपरमैन वाला डायलॉग बार बार मेरे को दिमाग में आता है, विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो व्यक्ति इस्कॉन में है, सोचिए ब्रह्मास्त्र आ गया हाथ में। हम लोग का आचरण, हम लोग का व्यवहार सुपर क्लास होना चाहिए। अदरवाइज कुछ होने से बाहर का व्यक्ति बोलेगा ये इस्कॉन वाले देखो कैसे है। ऐसा ही होता है इस्कॉन वाले, कुछ होने से इस्कॉन का नाम लेगा। बाबू जी कभी मैं भी ऐसे करने लगती हूँ ना तो मुझे भी याद आता है, अरे प्रभुपाद जी का हम नाम खराब कर रहे हैं। हमको प्रभुपाद जी का नाम नहीं खराब करना, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, देखो प्रभुपाद जी के इंस्टीट्यूशन में यही सब सिखाया जाता है, प्रभुपाद जी का नाम खराब हुआ। मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है प्रभु जी, तो मैं तुरंत साइलेंट हो जाती हूँ कि नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी अपना शॉर्टकमिंग्स को खत्म करने का। प्रभु वही, do we want to be remembered as that, you know, nagging person after one day we are not here? No, don't want to be like that, na? Remembered as। हरे कृष्ण प्रभु थैंक जी। यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि I also invite these qualities। ये सुनिए राधिका माता जी। 241 में प्रभु जी 241 श्लोक में बोला गया, अंतरंग सेवा का अर्थ है आध्यात्मिक शरीर में की गई सेवा। और उधर नीचे इसी लाइन नीचे 3 नंबर लाइन में दिया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी अब राधा कृष्ण की सेवा प्रारंभ कर दी है मन में। तो ये सब अभी पढ़ाया नहीं गया माता जी। अच्छा, हाँ 241 241 हुआ नहीं अभी। अभी 40 से होगा, अभी पीछे तक। अच्छा ठीक, Okay। अब देखिए 241 हो गई। ओके। So ये त्रिनादपि सुनी चेना तरुरेवा सहिष्णुना ना। रिमेम्बर ये चैतन्य शिक्षाष्टकम जो है, ये कलेक्शन ऑफ 8 स्टैंडर्ड्स, ये महाप्रभु का जो टॉप शिक्षाएं हैं, इसको शिक्षाष्टकम कंबाइन करके शिक्षाष्टकम। ओके, सो ये सब इंस्ट्रक्शंस महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब ये सब इंस्ट्रक्शन सुना तो उन्होंने क्या बोला, एतो सुनी रघुनाथ बंदिला चरण। सुनीति राधिका तो सुनी रघुनाथ बंदिला चरण, महाप्रभु कोइला तारे कृपा लिंगन। महाप्रभु केला तारे कृपा लिंगन। মহাপ্রভুর কাছে এই নির্দেশ পেয়ে রঘুনাথ দাস তার শ্রীপাদ পদ্ম বন্দনা করলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে তাকে আলিঙ্গন করলেন। পুনঃসমর্পিলা তারে স্বরূপের স্থানে। পুনঃসমর্পিলা তারে প্রভুর স্থানে। नहीं স্বরূপের স্থানে। পুনঃসমর্পিলা অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে। অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় রঘুনাথকে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাছে সমর্পণ করলেন এবং রঘুনাথ দাস স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করতে লাগলেন। রঘুনাথ দাস স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ সেবা করতে লাগলেন। মনে মনে স্বীয় স্বরূপ দেহে যে ব্রজ সেবা তাই অন্তরঙ্গা সেবা। মনে মনে স্বীয় स्वरूप देहे जे ब्रज सेवा ताई अंतरंग सेवा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं पूछूंगा पिंकी माता जी को कि क्या समझ में आया ये स्टेटमेंट। इंग्लिश में पढ़िए ना ये लाइन। या ये बंगाली में क्लियर है। मने मने स्वीय स्वरूप देहे, स्वीय स्वरूप देहे माने
भगवान के धाम में जो हम लोग का स्वरूप का देह है, कोई भगवान के धाम में जो चामर हिलाता है, कोई भगवान के धाम में भगवान के लिए तांबुल बनाते हैं, पान बना देता है। मने मने शिव स्वरूप देहे जे ब्रज सेवा ताई अंतरंगा शिवा। समझ में आया सबको? शशि माता जी बताइए क्या समझ में आया? भगवान के धाम में प्रभु जी जो मेरा सेवा था, वही यहाँ पर भी हम मन से मन वही सेवा करने लगे। और उसको क्या बोलता है? अंतरंग सेवा। अंतरंग सेवा, सब ओके सब। यस, समिति माता जी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ललिता देवी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ललिता देवी और विशाखा कौन है? रामानंद राय। तार जूथे प्रवेश करे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी शिव अंतरंग ब्रज सेवा करते हैं। हरि बोल। ओके, तार जूथे माने along with him together। जूथे मतलब वो उनके ग्रुप में अलग अलग ग्रुप है ना, अलग अलग ग्रुप जूथ था, जिस अलग अलग ग्रुप्स है ना, जैसे सब गोपियों का अलग अलग ग्रुप है। जूथ मतलब ग्रुप हो गया, मतलब संगे ना, संगे तो जूथे माने संगे ना कि संगे मतलब ग्रुप जैसा हो गया ना। अलग अलग गोपियों का अलग अलग ग्रुप है ना, जूथेश्वरी बोलते हैं ना अलग अलग गोपियों को। अपने अपने जूथ का वो मतलब हेड है, तो उनके ग्रुप में सेवा कर रहे हो। ललिता सखी के ग्रुप में वो रघुनाथ गोस्वामी सेवा कर। ओके, अच्छा ये आपका लिस्ट से एक बार देखिए ज्योति माता जी, वो रघुनाथ दास गोस्वामी कौन सा मंजिरी थे या क्या थे? ओके प्रभु, प्रभु जस्ट वन क्वेश्चन कि प्रभु यहाँ पे हमें अपना स्वरूप कैसे मालूम पड़ेगा? आई मीन जैसे कि मालूम वहाँ स्पिरिचुअल बॉडी में हमने वो काम किया सेवा, तो यहाँ वो स्वरूप हमें कैसे पता चलेगा कि हम वो काम यहाँ पे भी वही सेवा? भजन करते करते एक दिन पता चल जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन वृंदावन में बहुत साधु बाबा जी लोग हैं, बोलेगा कि नो क्या प्रभुपाद जी आप लोग को साधना भक्ति में फंसा दिया, डेली जप करना, ये करना। आओ वृंदावन में मेरे आश्रम में रहो 6 दिन, मैं आपको सिद्ध प्रणाली बता दूंगा। आपका सिद्ध प्रणाली क्या है ना, आप भगवान के धाम में क्या है, आप क्यों जप कर रहे हो? आप तो भगवान में धाम में चामर हिलाते हो, आप सिर्फ चामर हिलाते रहो। हरे कृष्ण। ये बहुत बड़ा स्कैंड उधर ये सब चल रहा है, इसलिए वृंदावन बहुत सतर्क रहना है। वृंदावन धाम में जाना रहना बहुत इम्पोर्टेंट, माने भक्तों के गाइडेंस में। नहीं तो इसका नोएडा का फेमस केस है, एक बहुत बड़ा। इसीलिए तो धाम में ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए ना, रहते ना धाम में। अभी नरोत्तम दास ठाकुर तो धामवास को मना किया है, लेकिन जाते हैं, फिर भी हम लोग उधर जाते हैं हाई डोज लेने के लिए, लेकिन गाइडेंस में रहना चाहिए, यही बात है। इंग्लिश में एक बार ये मैं पढ़ लेता हूँ इसका परपोर्ट। 241 तो नोएडा के लिए क्या बोले थे? अभी नोएडा के लिए, नोएडा पे फेमस है तो इसका नोएडा बस प्रचारक था, इतना अच्छा प्रचारक था, वो सब अपना मेंबर्स को वृंदावन धाम घुमाने ले गया था। वहां से राधा कुंड गोवर्धन परिक्रमा करवाया, राधा कुंड में गया। राधा कुंड में जाकर जो लीडर था वो एक वहां का बाबा जी का चक्कर में आ गया। बाबा जी वो सिद्ध प्रणाली सिखाएगा दिखाएगा ऐसे कुछ बोला, सिखाया। 2-4 दिन उन लोग अपना ट्रिप एक्सटेंड किया। इसके बाद आई थिंक 250 लोग था कुछ ऐसे। पूरा हम लोग इस्कॉन छोड़ के वहाँ बाबा जी का आश्रम में ऐसे कुछ रहने लग गया। उन बाबा जी का कुछ क्वार्टर भी था इधर नोएडा में, ऐसे कुछ मैंने वो होता ना, इन लोग का संस्था तो बहुत बड़ा रहता है। पूरा इस्कॉन छोड़ के चला गया फिर पूरा सब वही सिद्ध प्रणाली का चक्कर में कि सिद्ध प्रणाली दिखाएगा कौन क्या सेवा करता है भगवान के धाम में। प्रभु ये लीडर का साजिश भी तो हो प्रभु जी, सकता है ना। इतना सुनने के बाद भी प्रभु जी इतना वो इतना हाई क्लास डिवोटी बन गए। कैसे मालूम इतना सुना? आपको मालूम कैसे इतना सुना? मे बी देवर नियोफाइट्स, डोंट नो, हाउ डू यू नो? यस प्रभु आपने तो वो सुना जब तो इतना प्रचार कर पाए। हाँ प्रभु जी, वही वही। तो क्या हुआ? कभी भी कोई फंस सकता है। कितना बड़ा बड़ा साधु ऊपर से गिरा। प्रभु कोलकाता में भी तो सेम केस हुआ है। 1996 में एक दीक्षा गुरु का पतन हुआ इसका में, वो तब पूरा आग लग गया था इस माने में, बहुत बड़ा मैटर हो गया था 1996 में। सोचिए जो दीक्षा गुरु का पतन हुआ, उनका शिष्य लोग जो दीक्षा लिया उनसे, उनका क्या हालत हो गया होगा, उन लोगों का क्या हालत हो गया, पूरा इस्कॉन में टर्मोइल हो गया था 1996 में। हाँ, फिर महाराज फेमस श्रील प्रभुपाद डिसाइपल, उनका फॉल डाउन हुआ।
फिर अगर वो लेवल में हो सकता है तो एक प्रचारक का फॉल डाउन की क्या बड़ी बात है? पंजाबी क्या बोलते की बड़ी बात, समथिंग आई डोंट नो, नो बिग डील। प्रभुजी रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम है और वो थे रास मंजरी, रति मंजरी प्लस भानुमती। हैं 3 जन? हाँ प्रभुजी। रास मंजरी, रति मंजरी और भानुमती। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के लिए बोले हैं माता जी प्रभु जी? नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी। स्वरूप दामोदर तो बोला है माता जी। स्वरूप दामोदर कौन है तो लिखा हुआ इधर। हाँ वो तो रघुनाथ दास ललिता देवी। ललिता देवी। स्वरूप दामोदर तो लिखा हुआ है इधर। ओके, अभी टाइम हो गया। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, खाने रहिलो বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चरितामृतम की जय, राज कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।